السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBN نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ہدایت پر ملکم چیرو میں ایک ایمرجنسی کوارڈینیشن میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں اربن فلڈنگ، واٹر لاگنگ اور ٹریفک ڈسٹرپشن سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ کے دوران تلنگانہ DGP اور سینئر آفیشلز نے زور دیا کہ مانسون سیزن میں پبلک سیفٹی اور ٹریفک مینجمنٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانی چاہیے۔ آفیشلز نے فیصلہ کیا کہ خاص انجینئرنگ ٹیمز ملکم چیرو، خواجہ گوڑا لیک اور مندیکنٹا، گروناتھ چیرو، میاں پور، کنڈاپور اور بایو ڈائیورسٹی جنکشن سمیت فلڈ پرون مقامات کا معائنہ کریں گے۔ ٹیمز واٹر لاگنگ کی اصل وجوہات کی نشاندہی کر کے مستقل حل کے لیے سفارشات پیش کریں گی۔ فاطمہ شیراز لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمیچور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ Every parent wants the best start for their child's future. Admissions are now open at Success the School for the academic year 2026 to 27. Our branches are located at Toli Chowki, Sun City, Asif Nagar, Saidabad, Purani Haveli and Shalibanda. Exclusive girls campuses are available at Toli Chowki and Purani Haveli. Admissions open from nursery to grade 10. Limited seats available. Visit the nearest campus today. Success the School, shaping young minds for a brighter future. پرائیویٹ سکولز کے دوبارہ کھلنے کے ساتھ ہی رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے اسٹوڈنٹس کی سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے اسکول بسز کی چیکنگ تیز کر دی ہے۔ اس سلسلے میں راجندر نگر علاقے میں ایک اسپیشل انفورسمنٹ ڈرائیو چلائی گئی، جہاں ٹرانسپورٹ آفیشلز نے اسکول بسز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انسپیکشن ٹیم نے بسز کے اہم ڈاکیومنٹس جیسے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، RC پرمٹ، انشورنس، فٹنس سرٹیفکیٹ، پولوشن سرٹیفکیٹ اور ڈرائیور لائسنس کی جانچ کی گئی۔ آفیشلز نے بسز کے اندر موجود سیفٹی ارینجمنٹس کا بھی جائزہ لیا، جس میں فائر ایکسٹنگوشرز، فرسٹ ایڈ کٹس اور اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ کی تشخیص شامل تھی، اور اتھارٹیز نے یہ بھی چیک کیا کہ بسز تجربہ کار اور کوالیفائڈ ڈرائیورز چلا رہے ہیں یا نہیں۔ سیفٹی ریویو کے تحت خاص طور پر 60 سال سے زیادہ عمر کے ڈرائیورز پر بھی توجہ دی گئی۔ ٹرانسپورٹ آفیشلز کے مطابق اس اسپیشل ڈرائیو کا مقصد ٹرانسپورٹ ریگولیشنز پر عمل درآمد کو یقینی بنانا اور اسکول کے دوبارہ کھلنے پر اسٹوڈنٹس کو محفوظ اور پرامن سفر فراہم کرنا ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر وی ہنمنت راؤ نے اسٹوڈنٹ ایشوز پر راہل گاندھی کے بیانات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی حمایت جاری رہنی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ راہل گاندھی ہمیشہ اسٹوڈنٹس اور یوتھ کے مسائل کو اٹھاتے رہے اور ان کی آواز کو مضبوطی سے سپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اسٹوڈنٹس کے حقوق اور ان کے مستقبل سے متعلق مسائل پر توجہ دینا ضروری ہے، اور انہوں نے میٹرو ریل پروجیکٹ کے حوالے سے یونین منسٹر کشن ریڈی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سوال اٹھائے کہ جب چیف منسٹر نے حیدرآباد کی ترقی کے لیے میٹرو ریل پروجیکٹ کی درخواست کی ہے تو پھر اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کی بڑھتی ہوئی آبادی اور ٹرانسپورٹ ضروریات کو دیکھتے ہوئے میٹرو ریل ایکسپینشن شہر کی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے اور مرکزی حکومت کو اس پروجیکٹ کی حمایت کرنی چاہیے۔ Unless somewhere it should have every time leakage, day and night. They will whole night they are sitting their studies, and finally they are going for examination, and next day it will come for leakage. So whole BRS کے سینئر لیڈر ہریش راؤ نے تلنگانہ کی کانگریس حکومت پر گروکل اسکول کے لیے خریدے جانے والے انڈوں، دالوں اور دیگر سامان میں 2000 کروڑ روپے اسکیم کا الزام لگایا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ بچوں کو دیے جانے والے انڈوں اور دالوں میں بھی کرپشن کے الزامات سامنے آ رہے۔ انہوں نے منسٹر ادلوری لکشمن اور پونم پربھاکر کے بیانات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت کا دعویٰ ہے کہ خریداری 650 کروڑ روپے کی ہے تو پھر 2000 کروڑ کے ٹینڈرز کہاں سے آئے؟ లక్ష్మణ్ గారు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు నాకు ఛాలెంజ్ చేసిండ్రు.
అరే నువ్వు 2000 కోట్ల స్కామ్ అంటున్నావు, మేం కొన్నదే 680 కోట్లది అన్నారు. వాళ్ళకి నిజంగా बीआरएस एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने सिंगारेनी कॉलरीज मैनेजमेंट और हुकूमत पर मजदूरों की बुनियादी जरूरियात पूरा न करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये अमल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ। कविता ने कहा कि सिंगारेनी की कानों में काम करने वाले मजदूरों को नामुनासिब सेफ्टी अरेंजमेंट्स फराहम किए जा रहे हैं और न ही पीने के पानी जैसी बुनियादी सहूलियात दस्तयाब है। उनका कहना था कि मजदूरों की जान और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में माइनिंग सेक्टर में वर्कर्स की सेफ्टी और वेंटिलेशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा, लेकिन सिंगारेनी में अब भी पुराने निज़ाम पर इन्हिसार किया जा रहा। उनके मुताबिक मजदूरों को कानों के अंदर मुनासिब हवा तक फराहम ना कर पाना इंतज़ामिया और हुकूमत की नाकामी को जाहिर करता है। कलवा कुंटला कविता ने यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी से भी मुतालबा किया कि तेलंगाना के गोदावरी वैली में मौजूद कोल रिजर्व्स को सिंगारेनी के लिए एलोकेट किया जाए। उन्होंने कहा है कि सिंगारेनी को कोल ब्लॉक्स हासिल करने के लिए प्राइवेट कंपनीज के साथ मुकाबले की सूरत हाल से बचाया जाना चाहिए और मरकजी हुकूमत को कंपनी के लिए मजीद कोल ब्लॉक्स अलॉट करने की कोशिश करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव से मुलाकात की और स्टेट से मुतल्लिक 7 से 8 अहम एनवायरनमेंट डिमांड्स पर तफसीली गुफ्तगू की। पवन कल्याण ने कहा कि मीटिंग के दौरान आंध्र प्रदेश के एनवायरनमेंटल कंसर्न्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड कई अहम मसाइल उठाए गए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के एनवायरनमेंटल प्रोजेक्ट्स और डिमांड्स पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी। सोर्सेज के मुताबिक मीटिंग में एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, पोल्यूशन कंट्रोल और ग्रीन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जैसे मौज़ूआत भी ज़ेर गौर आए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर में अमरावती के मुस्तकबिल के विजन पेश करते हुए कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अमरावती को एक्सपेरिएंशियल सिटी और इंडिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बना रही। सीएम नायडू ने कहा है कि अमरावती को इस तरह डेवलप किया जा रहा जहां हाई लाइवेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंसेस और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हर शख्स के लिए दस्तयाब हों। उन्होंने जोर दिया कि सिटी प्लानिंग में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ड्राइवन गवर्नेंस को अहमियत दी जा रही। Highest per capita income earners are Indians. Among Indians, my state, my province people are the number one, around 35% of Indian origin. That is the strength of technology. Today, if you see here, the सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने जयपुर प्रोटेस्ट के दौरान हुए हमले पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि यह हमला असल मुद्दों से तवज्जो हटाने और स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश है। अभिजीत दिपके ने कहा, मुझ पर हमला असल इश्यू से ध्यान भटकाने और स्टूडेंट्स की आवाज को खामोश करने की कोशिश। उन्होंने ऐलान किया कि वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे के लिए एहतजाज जारी रखेंगे। सीजेपी फाउंडर ने मजीद इल्जाम लगाया कि उन पर हमला करने वालों के पीछे आरएसएस से वाबस्ता अफराद का हाथ है। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर हमले के पीछे आरएसएस के लोग हैं। इस वाक़े के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है, जबकि मुख्तलिफ तंजीमें और सियासी हलके इस मामले पर अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। हमले के हवाले से अथॉरिटीज़ की जानिब से तहक़ीक़ात जारी है। ते दुश्मन झालेले आरएसएसचे काही लोक होते ते त्यात काही नवीन नाही आहे। जेव्हा कोणी या सरकार विरोधात बोलतात किंवा त्यांच्या विचारधारेविरुद्ध बोलतात ते लोक असे झाले करतात काही नवीन नाही याच्यात म्हणून काय माझ्यावर हल्ला केला का तुम्हाला टाळण्याचा प्रयत्न होतो का असं वाटतं दुसरं काय करायचं। बीजेपी एमपी तरुण चग ने पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान पर तनकीद करते हुए कहा है कि उनके रवैये ने सिख कौम के जज्बात को मजरूह किया है। तरुण चग का ये बयान अकल तख्त के उस एडिक्ट के तनाजुर में सामने आया है जिसमें भगवंत मान को एंटी गुरु करार दिया गया था। बीजेपी लीडर ने कहा कि इस मामले ने सिख कम्युनिटी में तशवीश पैदा कर दी है और मजहबी एहतराम को बरकरार रखना हर शख्स की जिम्मेदारी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भगवंत मान के बयानात और एक्शन ने सिख सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई है। साथ ही उन्होंने मजहबी इदारों और उनके फैसलों के एहतराम पर भी जोर दिया।
है और अकाल तख्त एक संरक्षण संस्था है और पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय रावत ने उन रिपोर्ट्स को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि पार्टी के कुछ एमएलएज और एमपीज शिंदे लेड शिवसेना के राब्ते में हैं। संजय रावत ने कहा है कि ऐसी खबरें बेबुनियाद और हकीकत से दूर हैं। उन्होंने जोर दिया कि शिवसेना यूबीटी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टी लीडरशिप के साथ मजबूती से खड़े हैं। रावत के मुताबिक पार्टी के अंदर किसी किस्म की बगावत या दूसरे सियासी ग्रुप के साथ राब्ते की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसने किसी की बेटे की शपथ ली, किसी ने भगवान की शपथ ली, किसी ने साईं बाबा की शपथ ली और आखिरी दम तक हम यहाँ रहेंगे, इस प्रकार की भाषा। वो जो यूनियन मिनिस्टर देश के हैं या शिंदे ग्रुप के हैं, तो क्या हो गया? अगर मेरा कोई प्रधानमंत्री के पास काम है तो उनके पास मैं जाऊंगा ना, देश के प्रधानमंत्री है। अब आ गए, अभी कल शाम को मैं मुंबई में था, तुरंत रात को दिल्ली में आ गया, सुविधा है आने की, तो आते हैं हम लोग। ये महीने ये लोग कह रहे हैं, ये एमपी लोगों ने कहा है कि हम उद्धव जी के साथ हैं। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क़ियादत में आंध्र प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। प्रहलाद जोशी ने अपने बयान में कहा, सेंटर पीएम मोदी की लीडरशिप में आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए मुकम्मल तौर पर कमिटेड है। उन्होंने जोर दिया कि मरकज़ और रियासती हुकूमत के दरमियान बेहतर ताउन से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, रोजगार और पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वाराणसी के दल मंडी इलाके में डेवलपमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से डेमोलिशन ड्राइव जारी है, जिसके तहत 12 इमारतों को गिराया जा रहा। अथॉरिटीज के मुताबिक ऑपरेशन सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान अंजाम दिया जा रहा। मौके पर पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल की बड़ी तादाद तैनात की गई ताकि कानून व ज़ब्त की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि डेमोलिशन का अमल मनसूबाबंदी के मुताबिक चल रहा और तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। दाल मंडी इलाके में जारी इस कार्रवाई पर मुकामी लोगों और मुतल्लिका इदारों की नजरें मरकूज, जबकि अथॉरिटी सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी हुई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।